welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 1. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is the book Innovators Science. Today we are going to start with Unit 4, Our Body. And in this unit we are going to start with chapter number 7, Our Body. So let's move on to the chapter. Let's move on to intended learning outcomes. So in this chapter we are going to know about our body parts. We will also learn about growing up and we will also learn about our body parts help us. कहाँ पे ये हमें help करते हैं. So these are the topics that we are going to cover here. Let's move on to kick off. So our body is made up of many parts. हमारी जो body है वो बहुत सारे parts से बनी हुई है. Each part of our body has a different name and function. हर एक part जो हमारी body का है उसका एक अलग name और function है. Here we will read about the body parts and their functions. यहाँ पे हम body parts और उनके functions के बारे में पढ़ेंगे. Let's move on to Funtopia. So here you have to identify the pictures shown below. यहाँ पे कुछ pictures बनी है उन्हें हमें देखना है, उन्हें identify करना है. And you have to write the missing letters on the blank. Blank दिए हैं उनमें आपको missing letters लिखने हैं. तो पहली जो picture है वो है hand की. Next picture is of eyes. Next one is nose. And the last one is ear. So these you have to fill here. Now let's move on to knowing our body parts. हमारे कौन कौन से body parts हैं इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. So our body has many parts. हमारे body के बहुत सारे parts हैं and each part is important और हर एक part बहुत ही important है. We use these parts to do different activities. हम इन parts को use करते हैं अलग अलग activities को करने के लिए. तो आप देख सकते हैं ये हमारा head, फिर ये है eye, ear, this is neck, this part is chest, इसे हम elbow कहते हैं, ये hand कहलाता है, ये है हमारा अंगूठा thumb, ये हैं fingers, ये है tongue, ये है nose, ये है कंधा shoulders जिसे कहते हैं, ये है हमारा leg, ये part हमारा foot कहलाता है, इसे हम अपना knee कहते हैं घुटना and ये जो उंगलियां हैं उन्हें हम toes कहते हैं. तो ये है हमारे अलग अलग body parts. Let's move on to just a heads up. So all our body parts work like the parts of a machine. जैसे machine के parts काम करते हैं ना वैसे ही हमारे body parts भी काम करते हैं. Let's move on to twisting time. So here you have to find out which parts of the faces are missing. Face से कौन सा part missing है. Draw the missing parts. Missing part को आपको draw करना है. तो यहाँ पे आपको eyes draw कर देनी है. यहाँ पे आप देखो क्या miss हो रहा है. Find it out. यहाँ पे क्या miss हो रहा है. Nose miss हो रहा है. यहाँ पे क्या miss हो रहा है. Just find it out and do it. You have to draw it here. So do it yourself. Now let's move on to our body parts help us. हमारे बॉडी पार्ट्स हमारी कैसे मदद करते हैं. सो वी हैव 2 hands. हमारे पास 2 हाथ हैं. वी यूज आवर हैंड्स टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज और इन्हें हम यूज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए जैसे कि टू ईट, राइट एंड होल्ड. खाने के लिए, लिखने के लिए और चीज़ों को पकड़ने के लिए. सो आप देख सकते हैं हैंड से हम पकड़ के खा रहे हैं, लिख रहे हैं और चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं. We have 2 legs. हमारे पास 2 पैर भी हैं. We use our legs to do different activities. पैरों से हम बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि to walk, skip, run and kick. Walk करने के लिए, चलने के लिए, skip करने के लिए, run करने के लिए और kick करने के लिए किसी चीज़ को हम अपने पैरों को use करते हैं. आप देख सकते हैं सब जगह पैरों को use किया जा रहा है. We see with the help of our eyes और eyes की मदद से हम देख सकते हैं टीवी, मोबाइल. तो आप देख सकते हैं ये सारे काम हम eyes की मदद से कर सकते हैं. Let's move on to remember this. So our body part
hand rhymes with band and chin with thin. So हमारे बॉडी पार्ट जो हैंड है उसका राइमिंग वर्ड है बैंड और जो हमारा बॉडी पार्ट है चिन इसका जो राइमिंग वर्ड है वो है थिन. So now let's move on to just a heads up. So some people cannot see, कुछ लोग देख नहीं सकते. They are said to be visually impaired. उन्हें हम visually impaired कहते हैं. And some people cannot hear, कुछ लोग सुन नहीं सकते. They are said to be hard of hearing, उन्हें hard of hearing कहा जाता है. Now we breathe through our nose, हम अपने nose से सांस लेते हैं. We also smell through our nose, और चीज़ों की खुशबू लेने के लिए भी हम अपने nose को ही यूज़ करते हैं. We hear sounds with the help of our ears. Ears की मदद से हम sound को सुनते हैं, music को सुनते हैं. Let's move on to remember this. So our tongue can detect almost 5 different tastes. हमारा जो tongue है वो 5 अलग अलग तरीके के टेस्ट को जो है डिटेक्ट कर सकता है. We have tongue inside our mouth, हमारे मुंह के अंदर हमारा टंग होता है. And we taste with it, हम उसके साथ टेस्ट करते हैं, उसके मदद से टेस्ट करते हैं. It also helps us speak, ये हमें बोलने में भी मदद करता है. तो टंग अगर कट जाए तो हम बोल नहीं पाते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा एंजॉय कर रहा है आइसक्रीम किसकी मदद से, टंग की मदद से. लेट्स मूव ऑन टू ट्विस्टिंग टाइम. सो हियर यू हैव टू टेक द करेक्ट चॉइस, जो सही है उसको टिक करना है. सो मानसी इज कवरिंग हर नोज, उसने अपने नाक को बंद कर रखा है बिकॉज देयर इज अ बैड या फिर गुड स्मेल अराउंड अस. अगर बुरी स्मेल होगी तो हम नाक बंद करेंगे या अच्छी स्मेल होगी तो हम नाक बंद करेंगे. सो यस, बुरी स्मेल आ रही है इसलिए उसने अपने नाक को बंद कर लिया है. सो बैड पे हम टिक करेंगे. नेक्स्ट, अवी इज किकिंग थ्रोइंग द फुटबॉल. अवी जो है क्या कर रहा है, अपने पैरों से किक कर रहा है या थ्रो कर रहा है फुटबॉल को, तो वो किक कर रहा है. नेक्स्ट, मुदित इज एंजॉइंग दिस डिश. उसके हाथ में आप देख सकते हैं कुछ पिज्जा जैसा डिश दिख रहा है. तो क्या वो स्वीट होता है, सार होता है या सॉल्टी होता है. सॉल्टी को हम टिक करेंगे क्योंकि पिज्जा सॉल्टी होता है. मोना इज होल्डिंग और लिफ्टिंग द टॉयज. मोना जो है टॉय को होल्ड किए हुए है या उठाए हुए है. सो मोना इज होल्डिंग द टॉय, अपने टॉय को उसने पकड़ा हुआ है इसलिए होल्डिंग आएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्रोइंग अप. सो चिल्ड्रन ग्रो अप विद द पासेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम बीतता है बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं. A baby grows up to a boy or a girl. बेबी जो है बॉय या फिर गर्ल में ग्रो हो जाता है. A boy or a girl grows up to be a young man. और जो बॉय है या जो गर्ल है वो एक यंग मैन या फिर यंग वुमेन में ग्रो हो जाते हैं. A young man or woman grows old. और ये जो यंग मैन और वुमेन है ये धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं. तो बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है और फिर वो ओल्ड हो जाता है. तो ऐसे ही हम धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं. सो दिस वाज द चैप्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेक टीचिंग फन. सो हियर यू हैव टू रिलेट एवरीडे एक्टिविटीज विद द बॉडी पार्ट्स यूज फॉर डूइंग दीज. कौन से काम को हम किस बॉडी पार्ट की मदद से हम करते हैं ये आपको बताना है. जैसे कि इन द म्यूजिक क्लास they use their ears to listen the music. म्यूजिक क्लास में अपने कानों को यूज करते हैं म्यूजिक को सुनने के लिए. एंड माउथ को यूज करते हैं सॉन्ग को सिंग करने के लिए. सो कौन से काम में कौन से बॉडी पार्ट को आप यूज करते हैं, दिस यू हैव टू टेल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्ड सेट. सो ब्लाइंड मीन्स वन हु कैन नॉट सी. ब्लाइंड वो पर्सन होता है जो देख नहीं सकता. एंड डेफ इज वन हु कैन नॉट हियर एनी साउंड. डेफ वो पर्सन है जो कोई भी आवाज नहीं सुन सकता. लेट्स मूव ऑन टू क्विक रिव्यू. सो आवर बॉडी हैज मेनी पार्ट्स. हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज विथ आवर बॉडी पार्ट्स. हम अपने बॉडी पार्ट्स की मदद से अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं. वी यूज आवर हैंड्स टू ईट एंड राइट. हम अपने हाथों को यूज करते हैं खाने और लिखने के लिए.
We see with our eyes, हम अपनी आंखों से देखते हैं. And children grow up with the passage of time. और बच्चे जो है समय बीतते बीतते वो बहुत सारी चीज़ें जो है सीखते हैं और ग्रो करते हैं. So these are the important points जो आपको लर्न करने हैं. Now let's move on to book exercise, which is put on your thinking cap. So एक exercise is darken the correct option in OMR sheet. यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके ऑप्शंस को हमें टिक करना है. फर्स्ट वन इज वी यूज आवर लेग्स टू. हम अपने लेग्स को किस काम में लाते हैं? वॉक करने में, ईट करने में, राइट करने में या थ्रो करने में. करेक्ट आंसर इज वॉक करने में. क्वेश्चन नंबर 2, वी यूज आवर हैंड्स टू. हम अपने हाथ से क्या करते हैं? देखते हैं, सी करते हैं, किक करते हैं, होल्ड करते हैं या फिर वॉक करते हैं. करेक्ट आंसर इज होल्ड. थर्ड वन इज वी टेस्ट विथ आवर. हम किस चीज से टेस्ट करते हैं? स्किन से, टंग से, नोज से या फिर आइज से. करेक्ट आंसर इज टंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. सो बॉक्स से हमें करेक्ट वर्ड चूज करके यहाँ पे फिल करना है. सो हियर द फर्स्ट वन इज वी यूज आवर हैंड्स टू राइट. We use our legs to skip. Tongue also help us speak. Fourth one is children grow with the passage of time. And the fifth one is we breathe through our nose. Let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the wrong ones. Here the first one is each body part is important. Yes, this is true. Second, we smell with our nose. Correct. Question number 3, we have 2 hands. Yes, correct. Fourth one, we hold pencil with our ears. क्या हम ears से अपने pencil को hold करते हैं? No, this is wrong. And the fifth one is our tongue can detect almost 5 different tastes. This is also wrong. It can detect 4 different kinds of tastes. So these are the answers. Now let's move on to the exercise, which is answer the following questions. Here the first one is how do we do different activities? So we do different activities with the help of different parts of our body. Question number 2, where is the tongue present in our body? So the tongue is present in the mouth. Question number 3, what is the use of our ears? So we use our ears to hear things, hear music or any other thing. Question number 4, write the names of 5 parts of the body. So the 5 parts are hands, legs, eyes, nose, ears. Now question number 5 is, do we grow up? Yes, we grow up with the passage of time from a child to old person. So these are the answers that you have to write down. And with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.